Hello bachcho, welcome to JEENious classes. Today is our second class on this function series and today we are going to start with functional equations. This is the most important part of function chapter as well as it is very spicy. Each and every question, almost each and every question in IITJEE, they're involved functional equation. So you should master in it if you are really preparing examination like IITJEE. So stay tuned to us till the last of the video so that you can take the maximum benefit from this class. Those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you like my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. Don't forget to comment me about any difficulty you face in this class. So let's start the class. देखो बच्चों, पहला बात ये है कि functional equation किसको बोलते हैं? What do you mean by functional equation? देखो, नेम में इसका जो नाम है इसमें सब कुछ बोल दिया है. Functional equation means it's an equation involving functions. Okay? कोई भी equation which involves function is what called your functional equation, right? Please see this question. यहां पर बोला है कि if for non-zero x, a f x plus b of f 1 by x is equals to 1 by x minus 5, where a is not equals to b. Now you have to find out what is my actual function. देखो बच्चों, यहां पर जो तुम देख रहे हो यहां पर क्या है? इन अ फंक्शनल इक्वेशन, फर्स्ट थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट इन प्लेस ऑफ एक्स यू कैन पुट एनी वैल्यू विच सैटिस्फाइज द डोमेन. जैसे इन दिस केस आई मस्ट मेंशन हियर दैट योर एक्स is not equals to 0, because if x equals to 0, 1 by x becomes undefined. x equals to 0 छोड़ के any value you want you can put in place of x. So in this question we are getting that a of fx plus b of f 1 by x equals to 1 by x minus 5. अभी यहां पर मुझे सोचना यह है कि मुझे निकालना क्या है? fx निकालना है. तो fx निकालने के लिए from one equation given, only one functional equation is given and we have to find out fx. But in this functional equation, f of 1 by x is involved. So to get the value of fx or to get fx, all we have to do, we have to eliminate f of 1 by x. लेकिन eliminate करने के लिए मुझे तो at least 2 equations चाहिए. लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक ही equation दिया हुआ है. फिर हम कैसे f of 1 by x को eliminate करें? Because the moment you eliminate f of 1 by x, you are going to get fx. That's it. That's exactly what I want. अच्छा, अभी हम क्या बोला? In place of x, you can put anything which is very much in the domain. Okay? अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं क्या? In place of x, I am putting 1 by x. In place of x, I am putting 1 by x. So what we are going to have? A times f of 1 by x plus b times f of x equals to x minus 5. Is it clear? अभी बच्चों देखो, यहां पर मेरा पास अभी 2 इक्वेशन बन गया है. एक है मेरा ये एक इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और द सेकेंड इक्वेशन दैट वी गॉट इज दिस. अभी मेरा काम क्या है? मुझे निकालना है fx. So to get fx, we have to eliminate f of 1 by x. So हम क्या करेंगे? ये वाला इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे a से और ये वाला को हम मल्टीप्लाई कर देंगे b से. Why? Because we will use elimination method to solve fx from these 2 equations. So पहला वाला इक्वेशन अगर a से हम मल्टीप्लाई करें, so we are going to have a square fx plus ab f of 1 by x equals to a by x minus, this is x, a by x minus 5. और सेकेंड वाला इक्वेशन क्या आ रहा है? b square fx
plus ABF of 1 by x equals to BX minus 5B. I'm sorry, यहाँ पर एक A भी होगा. Okay? Now what I'm doing, I'm simply subtracting it. So sign will get changed. So यहाँ पर मेरा आएगा a square minus b square fx. ये दोनों cancel, which is equals to a by x minus b by x minus 5a plus 5b. So from here we are getting fx is nothing but 1 by a square minus b square, a over x minus bx. If I take 5 common, we are going to have a minus b. That's it. So this is my function fx. Have you understood this? So इस सम में हम लोग क्या किया? हम लोग के पास एक फंक्शनल इक्वेशन था जहां से मुझे fx निकालना है, but that functional equation involves fx as well as f of 1 by x. So whatever foreign element we have to eliminate it. और उसको एलिमिनेट करने के लिए मेरा पास एटलीस्ट 2 इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन मेरा पास तो एक ही इक्वेशन है. तो दूसरा इक्वेशन हम कैसे लेके आया? x का जगह में इन प्लेस ऑफ x आई हैव पुट 1 by x, so that we get the second equation involving x and f of 1 by x. From these 2 equations we have eliminated f of 1 by x and we got fx. So this is the way we have to remember how we get fx when some other things, when some other functions involving some other terms are given and we eliminate that term to get fx. Okay, let us take another problem. See this question. Fx plus f of 1 by 1 minus x is 2 times 1 minus 2x by x into 1 minus x. और इस फंक्शनल इक्वेशन से मुझे fx निकालना है. तो fx कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, जैसे हम लोग प्रीवियस सम में किया है, यहां पर मेरा जो फॉरेन एलिमेंट है वो है f ऑफ 1 by 1 minus x. अगर मुझे fx निकालना है तो मुझे एक सेकेंड इक्वेशन ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें fx भी रहेगा और ये फॉरेन एलिमेंट भी रहेगा, so that when we eliminate that foreign element we can extract the function fx. Clear? तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शनल इक्वेशन में थोड़ा सा हम एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को. 1 minus 2x को हम लोग लिख रहे हैं 1 minus x डिवाइडेड बाय x into 1 minus x. अगर दोनों को हम सेपरेट करें तो 1 by x minus 1 by, it will be 1 minus x. Okay? So this is the functional equation. Now what I'm doing, in place of x, I'm writing 1 by 1 minus x. Therefore we are having, in place of x, everywhere you replace it by 1 minus x. इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल रहा है? So we are having 1 and 1 goes off. Is it clear? Which can little bit, it can be simplified like in this way. So we are having, that's it. So we are having our first equation like this. I'm writing it here. This is our first equation which is given. And the second equation that we got,
Okay, so let me just rub this portion. अच्छा देखो बच्चों, हम लोग एक्चुअली मोटो क्या था मेरा, मुझे एक सेकेंड इक्वेशन चाहिए जिसमें एफ एक्स रहेगा और 1/1 - x रहेगा. बट यहां पर x इक्वल्स टू 1/1 - x रिप्लेस करने के बाद मेरा जो सेकेंड इक्वेशन आ रहा है, मेरा जो सेकेंड, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन जो आ रहा है उसमें एक नादर फॉरेन एलिमेंट आ गया. वो क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x. समझ में गया? तो अभी क्या करेंगे? अभी यहां से तो हम एफ एक्स निकाल नहीं पाएंगे. सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग x माइनस 1/x, इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं x से. ओके, या x जहां पर है उसको रिप्लेस कर दो x माइनस 1/x से. कहां पर पुट कर रहे हो? इन इक्वेशन 1. सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव? f ऑफ, in this equation I am putting, so we are having f of x minus 1/x plus f of Is it clear? So what we are having after simplification? That's it. That's exactly what we got. Is it clear? So our third equation is, I'm writing it here again. So this is our third equation. Okay? अभी देखो बच्चों, ये वाला मेरा क्या है? This is our foreign element. ये वाला और ये वाला, ये दोनों को अगर हम एलिमिनेट कर दे, इस पार्ट को अगर हम एलिमिनेट कर दे, देन वी आर गोइंग टू हैव अ रिलेशन इन्वॉल्विंग एफ ऑफ 1/1 - x. मतलब इसके साथ और इसका साथ एक मुझे रिलेशन मिल जाएगा. और अगर ये रिलेशन मुझे मिल गया तो उसका साथ हम 1 को एलिमिनेट कर देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. क्लियर? सो अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर सिंपली डूइंग, लेट मी रब दिस पोर्शन. So what we are doing actually, we are subtracting 3 from 2. We are subtracting 3 from 2. So what we are going to have? Is it clear? Now let me just simplify a little bit the right hand side. तो क्या मिलेगा बच्चों? Is it clear? Okay. So now what I'm doing, ये जो मेरा इक्वेशन आया, क्या आया? माइनस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/1 - x is 2 times 1/x minus x by x minus 1. क्लियर? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो बच्चों, ये वाला चीज को अगर हम हटा दें तो ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग टू गेट आवर एफ एक्स. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? आई एम सिंपली सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम इक्वेशन 1. I'm subtracting 3 from equation 1. So in the left hand side, you are going to have 2 times fx. And in the right hand side, we are going to have 2 times minus 2 times. Clear? Now let me take 2 common. Is it clear? अभी देखो बच्चों, यहां से एफ एक्स मुझे क्या मिल रहा है? 2 कैंसिल कर दो बोथ साइड्स. सो क्या मिल रहा है? 1/x will also go off. So we are left with x by x minus 1 plus
1 by x minus 1. मतलब मेरा fx कितना आ रहा है? It's x plus 1 by x minus 1. And that's your answer. Have you understood? Actually, ये sum थोड़ा सा लंबा हुआ है, but it is required in the very first stage to understand how we are actually finding out fx when even in first substitution we are not getting our fx from that given functional equation. जैसे हम लोग पहला वाला सम में क्या किए थे? एक सब्स्टिट्यूशन किए थे, फिर हम लोग एलिमिनेट कर दिया, तुरंत मुझे fx मिल गया. लेकिन ऐसा एवरी टाइम होगा नहीं. इसमें क्या हुआ है? इसमें 2-3 बार मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा. उसके बाद थोड़ा एलिमिनेशन के बाद वी आर गेटिंग fx बैक. Actually, I'm trying to show you different types of problem so that you can handle those sums in the examination. Examination में तुम ऐसा मत सोचो कि तुमको डायरेक्ट ये सम दे देगा. You never expect in IITJEE like examination कि तुम्हें डायरेक्ट प्रॉब्लम मिल जाएगा जो हम लोग कर रहे हैं. कभी नहीं. वहां पर बैठ के तुम लोग कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आई एम ट्राइंग टू शो यू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम. राइट? Let us move for the third one. देखो बच्चों, ये इक्वेशन बोला है डिटरमाइन ऑल फंक्शंस fx सच दैट ये जो फंक्शनल इक्वेशन दिया है यहां से मुझे fx निकालना है. देखो बच्चों, यहां पर दे दिया है x इज नॉट इक्वल्स टू 2. क्यों? क्योंकि अगर x इक्वल्स टू 2 हो जाए तो ये चीज, दिस पार्ट विल बिकम अनडिफाइंड. दैट इज वाई the domain is x belongs to any real value. कोई भी तुम वैल्यू यहां पर पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 मत पुट करो. राइट? ओके, सो इस फंक्शन से मुझे fx अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? पहले ही हम पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ x आई एम पुटिंग 2x plus 29 by x minus 2. कभी भी तुम्हें डिफरेंट फंक्शनल इक्वेशन मिले और वहां से तुम्हें fx निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो तुम पहले देखो fx छोड़ के जो भी है वो पूरे चीज को तुम x पकड़ लो. मतलब उसी जगह में तुम x पुट करो. दैट इज द थंब रूल. ओके, सो अगर हम x पुट करें, इन प्लेस ऑफ x इफ आई पुट 2x plus 29 by x minus 2, वी आर गोइंग टू हैव द इक्वेशन, अनदर फंक्शनल इक्वेशन लाइक, हर एक x के लिए तुम पुट कर दो जो हमने लिया है. दैट इज 2x plus 29 डिवाइडेड बाय x minus 2. ओके, और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? इन प्लेस ऑफ x आई विल पुट, बराबर. ओके, नाउ लेट अस सिंप्लीफाई. डिवाइडेड बाय, और राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिल रहा है? ओके, नाउ इसमें देखो बच्चों, 58 कैंसिल हो गया और नीचे में 2x कैंसिल हो गया. सो ऊपर में मेरा क्या आ रहा है? 33x नीचे में आ रहा है 33, और राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है? 280x plus 2900 minus 160 will give us 2740 divided by x minus 2. मतलब मेरा जो सेकेंड फंक्शनल इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? और यहां पर देखो मेरा fx आ गया. राइट? सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन. अभी बहुत आसान हो गया क्योंकि मुझे 2 फंक्शनल इक्वेशंस हैं जिसमें fx एक है और f of 2x plus 29 by x minus 2 है. अभी हमको ये पार्ट को एलिमिनेट करना है. We have to eliminate this part. Then only we can extract our fx. तो हम क्या कर रहे हैं? पहला इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकेंड इक्वेशन को हम
3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? सो क्या मिल रहा है? और सेकंड इक्वेशन से क्या आ रहा है? ओके, सो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो कितना आ रहेगा? 280 into 3, that will give us 840x plus 8220 divided by x minus 2. Is it clear? अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सिंपली let us just rub this portion. अभी बच्चों देखो, ये मेरा है थर्ड इक्वेशन और ये मेरा है फोर्थ इक्वेशन. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सब्ट्रैक्टिंग 3 from 4. अगर हम 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे क्या मिलेगा? इन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर गोइंग टू हैव 5 times fx equals to 840x plus 8220 divided by x minus 2 minus. क्लियर? अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. These are all layman's work, but still we have to do it. एक्चुअल सम मेरा निकल गया 200x into x minus 2 minus 160 into x minus 2. So we are having इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? Divided by x minus 2. Okay, so what is my fx? Simply divided by 5, so we are getting minus 40x square plus 216x plus 1708 divided by x minus 2. समझ में गया? सो ये से हम लोग fx निकाल दिया. दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग आउट fx. सो अभी तक जो तीनों सम हम लोग किए वहां से आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड हाउ टू एक्सट्रैक्ट fx फ्रॉम द गिवन फंक्शनल इक्वेशन. द ओनली लिबर्टी दैट यू हैव, that in place of x you can put anything, whatever value you want, whatever expression in place of x you want you can put, but within the given domain. अगर पुट करोगे तो वहां से मुझे सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा एंड देन एलिमिनेशन मेथड से हम लोग वो फॉरेन एलिमेंट को एलिमिनेट कर देंगे एंड वी विल गेट आवर fx. इज इट क्लियर? ओके, लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. देखो बच्चों, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है. यहां पर बोला है 2 times f of sin x plus f of cos x is x. और यहां पर दिया है कि x का जगह में एनीथिंग यू कैन पुट बिकॉज x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू. फ्रॉम हियर यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज योर fx. ओके ओके, सो कैसे करेंगे? Let us do one thing, because you see, I need a second functional equation which will involve f of sin x and f of cos x. वो दोनों अगर मिलेंगे तो एक को हम लोग एलिमिनेट करके दूसरे को हम निकाल देंगे. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इन प्लेस ऑफ x आई एम पुटिंग पाई बाई 2 माइनस x. इज इट क्लियर? आई एम पुटिंग पाई बाई 2 माइनस x. सो क्या आ रहा है? x का जगह में पाई बाई 2 माइनस x पुट करो. cos of pi by 2 minus x, that is equals to pi by 2 minus x. Clear? Okay, so क्या आ रहा है? 2 times f of cos x plus f of sin x, वो कितना आया? pi by 2 minus x. बच्चों तुम लोग समझ रहे हो कि हम क्यों x का जगह में जो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम हवा से कर रहे हैं, मतलब आर्बिट्रेरली आई एम नॉट डूइंग दैट.
I am doing it by having a constructive thing in my mind कि कैसे हम दो इक्वेशन निकालें so that I can eliminate one and I can get the second thing in our hand. From there we are going to get fx. समझ में जा रहा है? इसके लिए in this case I have put x equals to pi by 2 minus x. अभी देखो बच्चों, मेरा पास अभी ये जो इक्वेशन दिया है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. सो हम क्या करेंगे, यहां से किसी एक को हम एलिमिनेट कर देंगे. कैसे करेंगे? हम पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेट अस से 1 से, और सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से. सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, this is from the first equation and from the second equation we are getting क्लियर हुआ? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे. अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, साइन विल गेट चेंज. सो यहां से मेरा क्या आएगा, ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -3f of cos x is equals to minus pi plus 3x. ओके, सो अभी क्या होगा, f of cos x is coming to pi by 3 minus x. ओके ओके, एक बच्चों अभी हमको निकालना है f of x, लेकिन मेरा मिला है क्या, f of cos x is pi by 3 minus x. सो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं लेट cos x को हम x से रिप्लेस कर दे रहे हैं. cos x को हम x से रिप्लेस कर दे रहे हैं. मतलब क्या हो रहा है, यहां पर होगा f of x और यहां पर होगा pi by 3 माइनस cos इनवर्स ऑफ x. इज इट क्लियर? तो मेरा fx क्या आया, fx इज कमिंग टू pi by 3 माइनस cos इनवर्स ऑफ x. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली ओके. देखो बच्चों, एक फंक्शनल इक्वेशन तुम्हें बहुत अच्छा से याद रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है, fx into f of 1 by x. If this is equals to fx plus f of 1 by x, so every time तुम fx equals to 1 plus minus x to the power n assume कर लेना. This is very important. Make a note of this. This is very, very important relation. Okay. Second relation is if fx into f of 1 by x is 1. अगर इसको मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, देन fx को लेना है प्लस माइनस x टू द पावर n. सो ये दोनों फंक्शन थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कंप्लीटली याद रखना पड़ेगा, राइट? चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं. See this question, they have directly given you that fx into f of 1 by x equals to fx plus f of 1 by x. मतलब हम यहां पर assume क्या करेंगे कि मेरा fx is nothing but 1 plus minus x to the power n. अभी सवाल ये आ रहा है कि यहां पर हम प्लस लें या माइनस लें. ओके, सो फॉर दैट यू ऑब्जर्व देयर we have been given that f of 4 is 65. f of 4 is 65. क्या दिया है, f of 4 is 65. तो x का जगह में हम लोग 4 पुट कर दे रहे हैं. So we are getting 1 plus minus 4 to the power n is your f4, which is nothing but your 65. मतलब क्या हुआ, plus minus 4 to the power n is 65 minus 1, that is 64. मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस 4 टू द पावर n आ रहा है कितना, 4 क्यूब. अभी देखो बच्चों, 4 क्यूब तो ऑलवेज पॉजिटिव है. 4 क्यूब दैट इज 64 इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो आई कैन नॉट टेक दिस माइनस साइन. मतलब क्या हुआ, यहां से हम लोग बोलेंगे कि भाई 4 टू द पावर n इज नथिंग बट 4 क्यूब. क्योंकि माइनस हम लोग ले नहीं पाएंगे बिकॉज 64 इज पॉजिटिव. मतलब यहां से मुझे क्या मिल रहा है, n is nothing but 3. Therefore, my function fx becomes what बच्चों, 1 plus x to the power 3. Is it clear? So ये मेरा फंक्शन आ गया. इसके लिए हम बोला कि fx into f of 1 by x equals to fx plus f of 1 by x अगर है
तो इसको ऑलवेज फंक्शन को एज्यूम कर लो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n, और जो कंडीशन दिया होगा इन द क्वेश्चन वहां से तुम निकालो वेदर दिस साइन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अभी बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 6. सो एफ ऑफ 6 क्या होगा? 1 प्लस 6 टू द पावर क्यूब, दैट इज 1 प्लस 216. मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है? 217. Therefore, the value of f6 is 217. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. Let me take another problem. देखो बच्चों, यहां पर क्या फंक्शनल इक्वेशन दिया है? It is given that fx plus fy plus f of xy equals to 2 plus fx into fy. और यहां पर बोल दिया है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल वैल्यू. और क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ 4 इज 17 बोला है, एंड एफ ऑफ 1 दे हैव सेड इट इज नॉट इक्वल्स टू 1. अभी बोला है कि यहां से एफ 5 का वैल्यू निकालो. मतलब इन वन वर्ड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. व्हाट इज माई एफ एक्स? द मोमेंट आई गेट एफ एक्स, एक्स के जगह में हम 5 पुट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा. ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, सो यहां से कैसे निकालें? नाउ दिस इज द बिग क्वेश्चन. इस जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, यहां से हम लोग कैसे निकाले कि एफ एक्स क्या है? ओके, अच्छा बच्चों देखो, यहां पर बोला है f1 इज नॉट इक्वल्स टू 1. तो f1 का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा. 1 नहीं होगा, लेकिन कुछ तो वैल्यू होगा. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम x और y को इक्वल्स टू 1 पुट कर दे रहे. दिस इज द बेस पार्ट ऑफ फंक्शनल इक्वेशन. इसमें हम लोग x और y का वैल्यू कुछ भी विद इन द डोमेन पुट कर सकते हैं. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन इन द फंक्शनल इक्वेशन विद इन द स्पेसिफाइड डोमेन. ओके, सो अगर हम x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 पुट करें तो कितना आ रहा है मेरा? मतलब मेरा जो इक्वेशन आ रहा है वो है 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 इज 2 प्लस एफ स्क्वायर 1. मतलब कितना आ रहा है? एफ स्क्वायर 1 माइनस 3f1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो मुझे क्या मिल रहा है? फैक्टराइज अगर करें तो क्या मिलेगा? राइट? अभी देखो बच्चों, यहां पर इधर मेरा f1 1 होगा और f1 2 होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है f1 इज नॉट इक्वल्स टू 1. देयरफॉर वी गॉट f1 as 2. What we got? f1 as 2. f1 as 2. ओके, सो f1 मेरा मिल गया 2. अभी बच्चों देखो, अगर हम यहां पर इन प्लेस ऑफ y, इफ आई पुट 1 by x, इन प्लेस ऑफ y इफ आई पुट 1 by x, मेरा फंक्शनल इक्वेशन क्या आ रहा है? f of x into y, xy will give us 1. So f(x) ये है f of 1 by x. अभी बच्चों f1 का वैल्यू अभी क्या मिला? 2. तो यहां पर पुट कर देते हैं. सो fx f of 1 by x plus 2 equals to 2 plus fx into f of 1 by x. अभी 2 कैंसिल कर दो तो क्या बचा है? fx plus f of 1 by x is equals to fx into f of 1 by x. समझ में गया? देखो वो पुराना फॉर्म आ गया. अभी बच्चों जो प्रीवियस सम हम लोग किए थे वहां पर हम क्या किए थे? वहां पर हम तुम्हें ये रिलेशन डायरेक्टली दे दिए थे, बट नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट दैट फॉर्म डायरेक्टली. ऐसा वो फॉर्म तुम्हें डायरेक्टली मिलेगा नहीं. थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद देखोगे वो फॉर्म आ रहा है. fx plus f of 1 by x is equals to fx into f of 1 by x. Exactly the same thing we got here. थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद मुझे ये फॉर्म मिल गया. मतलब क्या बोलेंगे हम लोग?
हम लोग एज्यूम करेंगे कि fx इज नथिंग बट 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। अभी बोला है यहां पर f of 4 is 17, मतलब f of 4 मतलब 1 प्लस माइनस 4 टू द पावर n is 17। इसका मतलब क्या आ रहा है? प्लस माइनस 4 टू द पावर n is 17, मतलब क्या आ रहा है? आई एम सॉरी, 17 माइनस 1, मतलब प्लस माइनस 4 टू द पावर n is 16 विच इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। लेकिन 4 स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो यहां पर हम लोग माइनस साइन लेंगे नहीं। Therefore, we are getting 4 to the power n is 4 square implies n is 2. Clear हुआ? Therefore, my function fx is 1 plus, माइनस तो लेंगे नहीं, यहां से हम लोग रिजेक्ट कर दिया, equals to x square. So fx is nothing but 1 plus x square. ये अगर मिल गया, अगर fx मिल गया तो कुछ भी वैल्यू बोल दे, we can easily find out. यहां पर बोला है f of 5 निकालो, so f of 5 क्या होगा? 1 plus 5 square, that is 1 plus 25, which is equals to 26. Have you understood this? Absolutely. So आज हम लोग इस क्लास में जो डिस्कस किए हैं वो है हाउ टू फाइंड आउट द फंक्शन fx फ्रॉम द गिवन फंक्शनल इक्वेशन। और क्या सीखा हम लोग दो वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज सीखा। उसमें क्या है? fx इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू fx प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स अगर है तो fx को हम लोग एज्यूम करेंगे 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n, और अगर fx इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 है देन fx को हम लोग एज्यूम क्या करेंगे? प्लस माइनस एक्स टू द पावर n। ये दोनों आइडेंटिटीज मुझे, फंक्शनल इक्वेशन मुझे याद रखना पड़ेगा, करेक्ट? So in the next class, we will solve some more examples on functional equation, new types. Okay? So stay tuned to us. And if you are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you really like my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. Comment me if you have really liked my class and if you have faced any problem during the difficulty. In both the cases, you comment me. And we are having our learning app in the Google Play Store. You can download it directly from the Google Play Store. Link has been given in the description box. There I used to come twice a week live. So there you can ask me all your doubts regarding mathematics. And it's all free. So stay tuned to us. Keep watching, keep learning, and bye-bye.